So hello friends, welcome to NCERT Reader, and this is my fourth part of the chapter Lines and Angles, fourth and the last part of the chapter Lines and Angles. And now we will do some questions from exercise 6.2 and then we will enter to the exercise 6.3. Please friend, if you have any type of doubt, please clear your doubts by writing your doubts in the comment section. If you have problem in any questions, you can write the book name, after that exercise name, book name, chapter name and exercise name and question number, and you can send to me. Now, angle sum property of a triangle. First, we will enter in the third exercise and we will understand what is there in the third exercise. After that, we will do questions from exercise 2 also and 3 also. Angle sum property of a triangle. You have read this before also, but this is theorem 6.7. Yesterday we had done till 6.6. Now theorem 6.7. Theorem 6.7. The sum of all the angles of a triangle is 180. The sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. This is the theorem 6.7, and it is also known as angle sum property. Property. It is also known as angle sum property. Now see, here is a triangle A B C. यहाँ एक ट्रायंगल है और इसमें हम लोगों को प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 equals to 180 degree. So first we will write what is given. What is given we have to show. Given, nothing is given, only ABC is a triangle. ABC is a triangle. This is only given in the question. यही सिर्फ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है. अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 degree. So we will give the names here, that will be easy for us. 1, 2 and 3, that is angle A equal to angle 1. It means angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. We have to show this. Now यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, और कंस्ट्रक्शन कैसे, हमें इससे पहले हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस वाला. तो हमें BC के पैरेलल एक लाइन खींचना होगा जो कि A से पास हो. तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BC, ड्रॉ XY parallel to BC which passes the point A. It means
हमें एक्स वाई पैरेलल बी सी, एक्स वाई को बी सी के पैरेलल खींचना है, जो कि पॉइंट ए से पास हो। चलिए हमने खींच लिया। अब हमें दो एंगल्स के और नाम देने होंगे। इसे मैं रख देता हूँ 4, इसे रख देता हूँ 5। चलिए बहुत सिंपल है दोस्तों। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि अगर एक लाइन है, ये एक रे है, तो ये पूरा का सम जो है 180 होगा। तो सिंपल है, इसमें वैसे ही है, पर एक और लाइन दे दिया है यहाँ पे, तो भी फॉर्मूला बदलेगा नहीं, यही रहेगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। सी दिस, here the sum of all angles is 180 degree. Angle 1, 2, 3. Here the sum of all angles is 180 degree. Now ignore this and see here. Proof. Now see, xy is a line. This is y. XY is a line and ray AB and AC stands on it. So angle 4 plus angle 1 plus 5 equals to 180 degree. We write since XY is a line and ray AB and AC stands on it. We will write this: XY is a line and ray AB and AC stands on it. So friends, don't go on to my writing, because my writing is not so good when I write on board with markers. और वैसे भी ये थोड़ा छोटा बोर्ड है, तो मुझे इस तरह हाथ मोड़कर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मेरे राइटिंग पे नहीं जाइएगा। आप सुनिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसे, और फिर आप उसे लिख लीजिएगा। XY is a line and ray AB and AC stands on it. So therefore angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equal to 180 degree. Reason is very important to give, and reason we will give sum of all angles on a line is 180 degree. Is 180 degree. After that, now see here, if XY parallel BC and AB is transversal. See here, see again, if since XY parallel BC and AB is transversal, therefore angle 4 equal to angle 2. Why? Because of CO, RR, ES, PO and DING. Sorry, not corresponding angle, because of alternate interior angles. Alternate interior angles. Now after this, similarly this will be from first equation. Similarly angle 5 equal to angle 3, alternate interior angle. This will be equation number 2. Same way, XY parallel BC and AC is transversal, so angle 5 equals to angle 2, alternate interior angle. Yesterday we read
about parallel lines and properties of parallel lines, and in that we also read about alternate interior angles. So that property we are using here. And now substitute 4 as 3 and 5 as 3. Substitute 4 as 2 and 5 as 3. Let it equation 2 third and let this one be first. Now from first what is this? Angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equals to 180, and when we substitute angle 2 plus angle 1 plus angle 3 equals to 180, and we will write the region from where angle 4 equal to 2 and 5 equal to 3, from second equation and third equation, and this is angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree, and this is proved. Now you will note down this theorem, and this is the last theorem. Sorry, here is one more theorem, but it will not come in exam, so I will only help you to understand this theorem 6.8. Please pause the video and note down this angle sum property. This is very important, and in exercise 6.3 this theorem will be used. Now we will understand theorem 6.8. What is here? If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. We will understand this as like this. This is a triangle A, B, C. What is it's telling? If a side of a triangle is produced, let produce side BC and let this D. Now in triangle ABC, side BC is produced to D, यानी कि ट्रायंगल ABC में साइड BC जो है उसे हम D तक प्रोड्यूस किए हैं. उसके बाद then the exterior angle so formed, this is the exterior angle 1, let this angle be 1, is equal to the sum of the two interior opposite angles. Is equal to the sum of two interior opposite angles. This is not opposite of this angle. These two angles are opposite. Let it angle 2 and let it angle 2. It means angle 1 equal to angle 2 plus angle 3. This theorem says this, that अगर एक ट्रायंगल है ABC, अगर कोई भी साइड इसका हम प्रोड्यूस करें तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा. जैसे सपोज कीजिए ये 80 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. सपोज this is 80 degree, angle 1 equal to 80 degree, angle 2 equal to 30 degree. So we will put here 80 equal to 30 plus angle 3, and angle 3 will be 50 degree. तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए. अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा पहले वाले एक्सरसाइज से और फिर इस एक्सरसाइज से. तो चलिए मैं 3-4 ही क्वेश्चंस बताऊंगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर, बुक का नेम, एक्सरसाइज लिखकर हमें ज़रूर भेजिएगा.
हाँ, तो लेट्स गो. We will do one question first from exercise 2, 6.2, and the question will be question number. All the questions are very very easy, so little bit tough question is question number 6. So now we will understand it and try to solve it. So now first we will draw the figure and listen students. आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ ज्योमेट्री सेक्शन में फिगर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट. सेकंड, द स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन इज फर्स्ट वी विल राइट द गिवन, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. आफ्टर दैट टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है. आफ्टर दैट इफ़ नीडेड देन वी हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन, एंड इफ़ नॉट नीडेड देन वी हैव टू देन स्टार्ट प्रूविंग द क्वेश्चन. एंड थर्ड, वट एवर वी विल राइट in proving the question, we will give the reasons inside of that in the brackets. So now let's come to the question. This is question number 6 of exercise 6.2 from NCERT. Now first, these are two plane mirrors and these are kept parallel. These are two plane mirrors. So first, this here light go on this, after that this, and this is straight line. Okay, now give the name A, B, this is C, this is D, this is B, this is Q, R, S. Now see this. Read the question. PQ and RS are the two mirrors placed parallel to each other. It means PQ and RS are two mirrors which are placed parallel. It means PQ और RS जो है पैरेलल है. आफ्टर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, इट मीन्स हेयर इज समथिंग सोर्स ऑफ लाइट, आइदर it will be torch or candle or anything. Suppose here is a torch and we are lighting up the torch, then the ray of the light will go in this direction. After that it will strike and reflect in this direction, and it will again go this side for this, it will go like that only. But suppose till here only, here is something which is giving light, and then we have to prove that AB parallel to CD. Then we have to prove that AB parallel to CD. It is very very easy. It is very 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 easy. First, given. So friends, we have no time, so you will write given from yourself. Nothing we have to write. हमें कुछ नहीं लिखना है गिवन में, हमें सिर्फ वही लिखना है जो क्वेश्चंस में हमें दिख रहा है, वो वही सेम टू सेम हम लिख देंगे गिवन में. तो गिवन का मैं स्पेस GIVEN यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ. टू प्रूव, to prove AB parallel CD, we have to prove AB parallel to CD. Now after that, construction is needed here. Construction is needed here. We have to BXY, हमें BX परपेंडिकुलर टू PQ ड्रॉ करना होगा, और फिर CY परपेंडिकुलर टू RS
ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ BX, this is the sign of perpendicular, this is a sign of perpendicular, BX perpendicular to PQ and CY perpendicular to SR. This is the construction. Now अब फ्रेंड्स पहले हम इन एंगल्स के नाम लिख लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये 4। सो देखिए अब इसे हमने समझना है। तो हमने साइंस में पढ़ा है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने साइंस में पढ़ा है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि अगर ये प्लेन मिरर है, यहाँ से ये अगर जा रहा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये I और R, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। इट मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू 4 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वी विल राइट हियर proof angle 1 equal to angle 2 and angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4 by laws of by laws of reflection। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात हमें समझनी होगी। देखिए अगर सपोज कीजिए कि ये x को हम यहाँ से हटाकर इसे आगे बढ़ा दे रहे हैं और x इस पे ला दे रहे हैं RS पे, तो देखिए दोस्तों देखिए कैसे बनेगा। BX किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। BX किसके परपेंडिकुलर है? PQ के कंस्ट्रक्शन से। इसे हम रफ में नहीं, इसे हम दिखाएंगे यहाँ पे। सिंस BX परपेंडिकुलर टू PQ, रीजन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। BX परपेंडिकुलर है PQ के, तो PQ पैरेलल है RS के, तो BX परपेंडिकुलर RS, BX परपेंडिकुलर RS सिंस PQ पैरेलल RS। ये आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए BX जो है परपेंडिकुलर है PQ के और PQ जो है पैरेलल है RS के, तो BX RS के भी तो पैरेलल हो जाएगा ना। जैसे ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरा पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है, मानकर चलिए इसका परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 होगा तो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो अगर ये 90 होगा तो ये भी तो 90 हो जाएगा ना। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों का सम 180, तो 90 90 180। या फिर ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी से समझिए ना, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो सॉरी, ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर है। तो फिर हमें मिल गया BX परपेंडिकुलर RS और CY परपेंडिकुलर टू RS हमने पहले ही किया हुआ है कंस्ट्रक्शन। अब देखिए दोनों ही परपेंडिकुलर है RS के। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल होगा। कैसे? आप पूछें कैसे? तो ये
सपोज कीजिए ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर ये और ये पैरेलल, तो यहाँ पे भी बी एक्स पैरेलल हो जाएगा सी वाई के, देयरफॉर बी एक्स पैरेलल टू सी वाई। यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से वीडियो पीछे जाइए और फिर से देखिए बी वाई के। अब सिंपल हो गया, अब तो हो ही गया। तो बी एक्स अगर पैरेलल है सी वाई के तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। अब एंगल 3 एंगल 2 कैसे भाई, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए, अब एंगल 3 2 के इक्वल हो गया, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी कि 1 भी एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 4 भी एंगल 2 के इक्वल हो गया और एंगल 1 भी एंगल 4 के। दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम दोनों साइड ऐड कर देंगे। जैसे अगर हमारा 1, देखिए यहाँ पे अगर हमारा 1 + 2, अगर हम 1 + 2 करते हैं तो 1 2 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे 1 2 के इक्वल है ना, 1 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है। अगर 1 2 के इक्वल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2, और इसे हम लिख सकते हैं 2 एंगल 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 इक्वल्स टू, अब 3 और 4 में आइए, 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो 4 की जगह पे 3 लिख दिए तो 3 + 3 2 एंगल 3, 2 एंगल्स 3 हो गया। ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था, पर फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 3 + 4, प्रूफ हो गया। 2 एंगल 2 कितना होता है, 2 एंगल 2 एंगल 1 + एंगल 2 हुआ, 2 एंगल्स 3 कितना हुआ, एंगल 3 + एंगल 4 हुआ, प्रूफ। चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी वाले एक्सरसाइज से। हाँ तो चलिए अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 मैं सॉल्व करूँगा, बाकी आप खुद अपने से सॉल्व करिए। 6 थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, 6 नंबर क्वेश्चन में आप थोड़ी सी दिमाग लगाओगे वो बन जाएगा। अब सारी क्वेश्चन मैं ही बना दूंगा हार्ड हार्ड, तो फिर आप क्या बनाओगे, इसलिए मैं 5th का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए फिगर इस तरह है, फिगर इस तरह है, इसमें दिया हुआ है 75 डिग्री, इसमें दिया हुआ है 40 डिग्री, इसमें दिया हुआ है 95 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है हमें x और y। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, पीछे है मुझे दिखा नहीं।
तो देखिए हमें इसे फाइंड करना है एस क्यू टी, पहले नाम पी आर टी एस क्यू, हमें इसमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल एस क्यू टी। सिंपल है। देखिए एंगल्स फ्रॉम प्रॉपर्टी से हमें ये एंगल पता चल जाएगा, 95 प्लस 40 प्लस इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, तो एंगल 1 पता चल जाएगा। 90 प्लस 40 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में दे देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद जब एंगल 1 निकल जाएगा तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके बाद फिर इस ट्रायंगल में जब एंगल 2 पता चल जाएगा तो 2, 3 और 2, 3 और 75 तीनों को ऐड कर देंगे और इक्वल्स टू 180। तो 2 पता रहेगा, 75 डिग्री पता ही है, और प्लस 3 इक्वल्स टू 180। उसके बाद हमारा 3 एंगल एस क्यू टी जो है निकल जाएगा। ये मैंने बता दिया, इसे आप सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों ये हमारा यहीं पे जो है चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स का समाप्त होता है। क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का समाप्त होता है, यानी कि ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस हमारे चैप्टर नंबर 2 के होंगे, ज्योमेट्री सेक्शन के। सो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए ताकि मार्क्स अच्छे आएँ और पेरेंट्स को भी खुशी मिले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9523191474 9523191474। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप क्वेश्चंस की फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए। मैं आपको छोटा सा 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर मैं वो क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा। सो प्लीज़ दोस्तों पढ़ाई में मन लगाइए। तो चलिए बाय दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।